नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। द थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक अनकॉमन विजडम बाय अजान डिक सेलारातानो। द फॉरेस्ट ट्रेडिशन emphasizes meditative practice and striving for the realization of nibbana as the focus of monastic life. Ajahn Mahabua, the one particular teacher in that tradition, has impressed the engineer Peter John very much. His name was Ajahn Mahabua. The English monk's first impression of Ajahn Bua was striking. He saw an intense, cozy man with a dignified face who displayed the quick, decisive movements of a boxer. He liked Ajahn Mahabua. He appreciated the teacher's demeanor and the teacher's straightforward approach to teaching. The force of his personality was magnetic. Ajahn Mahabua advised him to use Anapanasati to concentrate the mind and consolidate its strength. He stressed that when he was not engaged in formal practice, he should strive to always keep his awareness within the confines of the body, thus preventing it from flowing out to external things. Practicing in that way safeguarded the mind and preserved its energy. Lastly, he stressed the importance of maintaining mindfulness in every activity at all times. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। The Thai forest tradition excerpts from the book Uncommon Wisdom by Ajahn Dick Selaratano. The forest tradition emphasizes meditative practice and striving for the realization of Nibbana as the focus of monastic life. Ajahn Mahabua, one particular teacher in that tradition, has impressed the engineer Peter John very much. His name was Ajahn Mahabua. The English monk's first impression of Ajahn Bua was striking. He saw an intense, cozy man with a dignified face who displayed the quick, decisive movements of a boxer. He liked Ajahn Mahabua. He appreciated the teacher's demeanor and the teacher's straightforward approach to teaching. The force of his personality was magnetic. Ajahn Mahabua advised him to use Anapanasati to concentrate the mind and consolidate its strength. He stressed that when he was not engaged in formal practice, he should strive to always keep his awareness within the confines of the body, thus preventing it from flowing out of external things. Practicing in that way safeguarded the mind and preserved its energy. Lastly, he stressed the importance of maintaining mindfulness in every activity at all times. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। थाई वन परंपरा अजान डिक सेलारतानो की पुस्तक असामान्य बुद्धि के एक अंश। वन परंपरा मठवासी जीवन के फोकस के रूप में ध्यान अभ्यास और निभाना की प्राप्ति के प्रयास के पर जोर देती है। अजान महाबुआ उस परंपरा के एक विशेष शिक्षक ने इंजीनियर पीटर जॉन को बहुत प्रभावित किया है। उसका नाम अजान महाबुआ था। अजान महाबुआ के बारे में अंग्रेज भिक्षु की पहली छाप अद्भुत थी। उन्होंने गरिमापूर्ण चेहरे वाले एक प्रखर सहज व्यक्ति को देखा जिसने एक मुक्केबाज को त्वरित निर्णायक गतिविधियों को प्रदर्शित किया। उन्होंने अजान महुआ बहुत पसंद था। उन्होंने शिक्षक के व्यवहार और पढ़ाने के प्रति उनके सीधे सपाट दृष्टिकोण की सराहना की। उनके व्यक्तित्व की शक्ति चुंबकीय थी। अजान महबूबा ने उन्हें मन को एकाग्र करने और उसकी शक्ति को मजबूत करने के लिए आनापानसति का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब वो औपचारिक अभ्यास में संलग्न नहीं थे तो उन्हें अपनी जागरूकता को हमेशा शरीर की सीमा के भीतर रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार इसे रोका जा सकता है बाहरी चीजों की ओर प्रभावित होना। इस तरह अभ्यास करने से मन सुरक्षित रहता है और उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। अंत में उन्होंने हर समय हर गतिविधि में सचेतना बनाए रखने पर महत्व बल दिया। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से विस्तार रूप में सुनते हैं और समझते हैं। थाई वन परंपरा, यहाँ थाई वन परंपरा के बारे बता रहे हैं। डिक सेलारतानो की पुस्तक असामान्य बुद्धि के अंश हैं। कुछ उनके पुस्तक से कुछ अंश लेकर पत्री सर हमें बता रहे हैं।
वन परंपरा मठवासी जीवन के फोकस के रूप में ध्यान अभ्यास और निभाना की प्राप्ति के प्रयास पर जोर देती है। अजान महबूबा एक विशेष शिक्षक के रूप में इंजीनियर पीटर जॉन को प्रभावित किया और उस शिक्षक का नाम जो है अजान महबूबा था। अजान महबूबा के बारे में अंग्रेज भिक्षु की पहली छाप अद्भुत थी। उन्होंने गरिमापूर्ण चेहरे वाले एक मुक्केबाज को त्वरित निर्णायक गतिविधि को प्रदर्शित किया। उन्होंने अजान महबूबा पसंद था उन्हें अजान महबूबा शिक्षक पसंद था। उनकी शिक्षक के व्यवहार और पढ़ाने के उनके प्रति सीधे सपाट दृष्टिकोण की सराहना की और उनका व्यक्तित्व एक चुंबकीय था। अजान महबूबा ने उनके मन को एकाग्र करने के लिए आनापानसती ध्यान करने के लिए सलाह दी। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि जब औपचारिक अभ्यास करते हैं तो उसमें संलग्न नहीं थे, तो जागरूकता को हमेशा सीमा के भीतर रखने का प्रयास करना चाहिए और इसे इस प्रकार रोका जा सकता है बाहरी चीजों की ओर जो प्रभावित करती है। इस तरह अभ्यास करने से मन सुरक्षित रहता है। यहाँ बता रहे हैं कि जब हम ध्यान करते हैं आनापानसती, उसके बारे में बता रहे हैं कि अभ्यास करने से, ध्यान अभ्यास करने से मन सुरक्षित रहता है और ऊर्जा सुरक्षित रहती है और हर समय गतिविधि में सचेतता बनाए रखने पर महत्व पर बल दिया उन्होंने। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए इस पुस्तक के माध्यम से पत्ती सर मैंने एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आनापानसती ध्यान कितना जरूरी है, इसके द्वारा हम अपने अंदर की ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, पत्ती सर के बताए हुए जो ध्यान है आनापानसती ध्यान, हमें नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। जो श्वासों के साथ ध्यान करने के बारे में पति सर बताते हैं, मैं स्व अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि मैं नियमित रूप से जब से ध्यान कर रहा हूँ तो तन से, मन से, आत्मा से स्वस्थता की अनुभूति प्राप्त हुई और आप भी इन चीजों को अब नियमित रूप से जब करेंगे तो आप इस चीज का अनुभव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय के साथ आपके साथ ये जो सारे मैंने आपके साथ जो सारे अध्याय के इस पुस्तक के कुछ अंश और अन्य जो पत्ती सर के बताए हुए जो है कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसे सुना और आप लोगों ने इसको लाइक किया, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगर इस पुस्तक के अगर आगे पीछे के जो सारे अंश आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube के चैनल के माध्यम से आप पीछे पूरे अध्याय नियमित रूप से आप देख सकते हैं और अगले जो जो अध्याय हैं पत्ती सर के जो बताए पत्ती सी डेली मैसेज बुक के पार्ट 2 के जो पुस्तक है उसके नए अध्याय के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।